Hi everyone, my name is Poonam Mehta. I am Director Training at Right Directions. I know that every one of you is worried about your future prospects because of the closure of international borders. As due to this, students are not sure whether they would be able to fly this year and would attend physical classes in Canada or not. As this situation is going on, like due to current COVID-19 pandemic situation, students have many questions in their mind कि क्या अभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में कनाडा की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या वेदर अभी जो सितंबर इनटेक ओपन है या जनवरी इनटेक ओपन है, वेदर दिस सितंबर और जनवरी इनटेक ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेगा या कैंपस क्लासेस होंगी. एंड इवन स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि कितना टाइम लगेगा एप्लीकेशन प्रोसेस होने में अगर वो फाइल के लिए अप्लाई करते हैं. See, students, you don't need to worry about all this because we have our expert team of counselors at Right Directions. आप Right Direction के ऑफिस में विजिट कर सकते हैं and you will get to know about all this information, and we would also help you to get going on your path towards staying abroad. So आज के लाइव सेशन में मैं आपसे बात करूंगी अबाउट द वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी एंड काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है कनाडा की, दैट इज माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी. I will also be discussing about the popular programs जो माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है to the international students. Even I'll talk about the scholarship क्या options होंगे. There are variety of scholarship options provided to international students. And as this university is situated in Atlantic Canada, so I'll talk about the settlement option. कैसे आपका settlement option होगा इस एरिया में, इस Atlantic Canada में पढ़ने का. So first of all, I will be talking about Mount Saint Vincent University. See, जो Mount Saint Vincent University है ये 1873 में establish हुई थी. It's a very old university, more than 100 years old है and काफी reputed university है. And the best part is this is a public university जिसमें settlement अगर आप student को करना होता है अटलांटिक कनाडा में, सो इट वुड बी वेरी इजियर, क्योंकि सेटलमेंट के टाइम पे ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपका पब्लिक फंडेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी होनी चाहिए. जो माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी है, दिस इज लोकेटेड इन हैलिफैक्स एरिया इन नोवा स्कॉशिया इन अटलांटिक कनाडा. सी जो हैलिफैक्स एरिया है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कनाडा स्मार्ट सिटी. एंड जो हैलिफैक्स डाउनटाउन से जस्ट 15 मिनट्स की ड्राइव है इस यूनिवर्सिटी की. एंड दिस यूनिवर्सिटी इज मेड इन 40 acres ऑफ द एरिया. दैट इज द बिग एरिया, काफी बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है. एंड मोर देन 4,000 स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं हु कम्स फ्रॉम 77 डिफरेंट कंट्रीज. So इस यूनिवर्सिटी में there are small class sizes, like I mean to say कि 20 से 23 students maximum study करते हैं. proper personal attention मिलती है faculty की तरफ से and काफी अच्छी education भी provided है. So I would like to tell you this is the first university to focus on women education in 1873, and this university has more than 40 programs like certificates, diplomas, graduate programs, even postgraduate programs. और इसमें जो भी programs हैं they are inclusive of experience learning and work experience, वो उसमें included होता है. And talking about the graduate employability rate, I would like to tell you this has been rated excellent in graduate employability rate with 95.1%. That is the good person. So talking about the scholarships, इसमें sibling discounts भी available हैं and it is giving attractive scholarships to international students. So I'll be talking about the scholarship point later on. So let's talk about the fee structure जो इस university में है.
It has affordable fee structure, ranges between 18 to 19,000 dollars. That would be for the first year. And इसमें medical insurance और U-Pass included होगा. एंड जो मास्टर प्रोग्राम्स हैं उसकी जो कंप्लीट प्रोग्राम की फी है दैट इज 18 to 20,000 डॉलर्स. एंड ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है एप्लीकेशंस ऑन द प्रिडिक्टेड स्कोर ऑल्सो. अगर आपके पास आईएल्स का स्कोर कार्ड अभी नहीं है एज यू आर टेकिंग आईएल्स कोचिंग, तो अभी आपका प्रिडिक्टेड स्कोर है, जैसे आप रन कर रहे हो आईएल्स की क्लासेस, आप टेस्ट दे रहे हो इंस्टीट्यूट में बैठ के या घर पे बैठ के, यू गेट टू नो कि आपको 6.5 या 7 हो गया है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दी एप्लीकेशन लेटर, क्योंकि इसमें आपका प्रिडिक्टेड स्कोर पे भी आपका ऑफर लेटर एक्सेप्टेड है. इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपको आईएल्स का टेस्ट अभी देना है. लेटर ऑन जब आप एम्बेसी में फाइल लगाओगे देन इट इज रिक्वायर्ड. एंड दिस यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑन कैंपस अकोमोडेशन ऑल्सो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं दे वांट कि हमें ऑन कैंपस अकोमोडेशन मिले यूनिवर्सिटी की तरफ से. सो दिस यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग ऑन कैंपस अकोमोडेशन टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द पॉपुलर programs which university is providing to the international students. See, इसमें जो अभी before I talk about the programs, I would like to talk about IELTS requirement. See, इसमें जो IELTS की requirement होती है for the certificate, for diploma, even for the undergraduate programs, इसमें IELTS की requirement overall 6.5 and no band less than 6. इवन टॉफल भी एक्सेप्टेड है. अगर आपका 84 का स्कोर है तो यू कैन अप्लाई. एंड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स टॉफल में मिनिमम स्कोर जो है 93 रिक्वायर्ड है. एंड जो आईएल्स की रिक्वायरमेंट है दैट इज 7.5 ओवरऑल एंड ओवरऑल नो बैंड लेस देन 6.5. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉपुलर प्रोग्राम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टॉकिंग अबाउट द डिप्लोमा प्रोग्राम्स. इसमें आपको 2 years डिप्लोमा प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं. आप प्रोग्राम कर सकते हैं लाइक बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट. ये 2 years के प्रोग्राम है और जो एप्लीकेशन फी है दैट वुड बी चार्ज दैट इज 40 Canadian dollars. टॉकिंग अबाउट दी बैचलर प्रोग्राम्स की भी एप्लीकेशन फीस 40 Canadian dollars है. एंड बैचलर प्रोग्राम्स आप आर्ट्स में कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स लाइक इन पब्लिक पॉलिसीज. इवन आप बैचलर प्रोग्राम कम्युनिकेशन में कर सकते हो, इवन इन इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड कनेडियन स्टडीज. इवन आप बैचलर कर सकते हो इन फ्रेंच, इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज ऑल्सो. सी नेक्स्ट अगर नेक्स्ट प्रोग्राम्स की बात करें, लाइक अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है दे कैन डू बैचलर ऑफ science, that is in biology, chemistry, even in maths, psychology and general studies. See, इसमें I can see there is a pop-up कि ऑस्ट्रेलिया की क्या updates हैं. I can see from कि रजत काम्बोज from बदरपुर, he is asking कि मैम ऑस्ट्रेलिया के क्या updates हैं. See, I'll be telling you updates very soon next week about the Australia, so you can see my previous session also. उसमें ऑस्ट्रेलिया के updates मैंने दिए हुए हैं. एंड आई कैन सी द पॉपअप की मैसेज आया हुआ है कमेंट बॉक्स में कि राजकुमार सानिका की नर्सिंग का कोर्स अवेलेबल है इसमें. येस ऑफ कोर्स आप इसमें कर सकते हैं. प्रोफेशनल स्टडीज होती है इसमें, आप बैचलर्स अपनी प्रोफेशनल स्टडीज में कर सकते हैं लाइक इन चाइल्ड एंड यूथ स्टडीज. एंड इवन अगर मैं प्रोफेशनल स्टडीज की जनरली बात करूं अपार्ट फ्रॉम नर्सिंग, तो इसमें बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोर्स है, बैचलर ऑफ साइंस अप्लाइड ह्यूमन न्यूट्रिशन का कोर्स है, बैचलर ऑफ पब्लिक रिलेशन का कोर्स है, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का भी कोर्स अवेलेबल है. टॉकिंग अबाउट दी मास्टर प्रोग्राम्स, यस मास्टर प्रोग्राम्स में जो एप्लीकेशन फी है दैट इज 50 Canadian dollars. सो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए 40 Canadian dollars एंड फ्रॉम दी फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स दैट इज 50 Canadian dollars है. और मास्टर प्रोग्राम्स इसमें अवेलेबल है लाइक मास्टर्स ऑफ अप्लाइड ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड इवन फॉर मास्टर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन. देयर आर मेनी कोर्सेज. मास्टर ऑफ आर्ट्स child and youth study, even a master of family studies in psychology, and even you can do master of arts
in psychology. See, depending upon your previous studies, क्योंकि आप relevant course ही करोगे, उसके according you can apply for the certificate, diploma, undergraduate as well as for the postgraduate programs. See, जो माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी एज आई मेंशन earlier कि ये हैलिफैक्स एरिया में लोकेटेड है. हैलिफैक्स इज अ सिटी एंड आई वुड लाइक टू टेल यू ये कैपिटल सिटी है नोवा स्कॉशिया की ऑफ अटलांटिक कनाडा. सो अटलांटिक कनाडा के एरिया में आती है. और जो हैलिफैक्स एरिया है दिस इज अ बिजनेस हब जो कनाडा का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है दैट इज इन हैलिफैक्स एरिया. And this is a top tourist destination place also. So ये दो reasons की वजह से Halifax area में there are numerous job opportunities जो इस area में पढ़ रहे हैं माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी में. Even हमें हमारे जो students जो इस यूनिवर्सिटी में गए हैं they give good feedback कि मैम बहुत सारे job options हैं, good opportunities हैं क्योंकि ये largest area है basically business hub है, काफ़ी job opportunities students के लिए available हैं. एंड इसमें जो टोटल पॉपुलेशन है दैट इज 4,50,000 और इसमें जो जनरली टेम्परेचर इट गोज डाउन टू -10 और 12 इन विंटर टाइम. एंड जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं दैट इज वेरी अफोर्डेबल. एंड आई कैन सी वन मैसेज जो मुझे कमेंट बॉक्स में आया दैट इज फ्रॉम लूथरा एरिक कि एनी स्कोप इन होटल मैनेजमेंट. यस ऑफ कोर्स there is a very good scope in hotel management as I mentioned. अभी latestly मैंने बताया है कि इसमें आपकी ये टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो होटल मैनेजमेंट के भी आपके माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी में काफ़ी ऑप्शंस हैं क्योंकि मैंने आपको कोर्स बताया था कि आप डिप्लोमा प्रोग्राम भी कर सकते हैं हॉस्पिटैलिटी में. टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी दैट इज डिप्लोमा प्रोग्राम. इवन बैचलर्स का भी है एंड मास्टर्स का भी है. यू कैन डेफिनेटली अप्लाई मिस्टर लूथरा. सो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑफिस इवन एट राइट डायरेक्शंस. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्कॉलरशिप ऑप्शंस. सी इसमें ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स और डिस्काउंट्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है. काफ़ी अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप्स हैं. सो आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट दी स्कॉलरशिप्स. सी जो फर्स्ट है इसमें आपकी एंट्रेंस स्कॉलरशिप है फॉर दी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स. इवन दिस यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप. सी जो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप होती है दैट इज फुल राइड स्कॉलरशिप जिसमें स्टूडेंट्स दे डोंट हैव टू पे फॉर द ट्यूशन फी. कंप्लीटली आपकी स्कॉलरशिप 100% हो जाती है. यू डोंट हैव टू पे फॉर द फूड, इवन फॉर द अकोमोडेशन एंड इवन फॉर द टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो. सो योर मनी इज बीइंग सेव्ड इफ यू गेट प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप. सो इसमें इन कोर्स स्कॉलरशिप भी है इन केस आपको स्टार्टिंग में स्कॉलरशिप नहीं मिल रही बट वाइल स्टडिंग इफ यू आर स्कोरिंग आपका जो GPA लेवल है 3.5 तक रीच कर रहा है ड्यूरिंग स्टडीज तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देगी. दैट इज कॉल्ड इन कोर्स स्कॉलरशिप. एंड इसमें सिबलिंग डिस्काउंट भी है. सपोज आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो एंड आपका रियल ब्रदर या सिस्टर ने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसकी ट्यूशन फीस कंप्लीटली हाफ हो जाएगी. दैट मीन्स 50% स्कॉलरशिप मिलेगी सिबलिंग डिस्काउंट में. सो नाउ अब मैं बात करूंगी सेटलमेंट ऑप्शन की. सी एज आई मेंशन कि जो माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी है दैट इज इन हैलिफैक्स एरिया इन नोवा स्कॉशिया ऑफ अटलांटिक कनाडा. सो अगर आप अटलांटिक कनाडा में पढ़ रहे हैं you would have a very good settlement option because normally when you apply for the PR तो आपको एटलीस्ट 7 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है राइट. एंड इवन आपको 2 years की स्टडी के बाद आपको 2 years का वर्क परमिट भी लेना पड़ता है. यू नीड टू हैव कंप्लीट 2 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑन पेपर्स प्रैक्टिकली और पेपर्स में भी देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर द PR. बट जैसे कि आप अटलांटिक कनाडा में स्टडी कर रहे हो तो इसमें यू नीड टू हैव 2 years प्रोग्राम एटलीस्ट आपका होना चाहिए पब्लिक फंडेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी. एज आई सेड माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी. अगर आप यहाँ से 2 years की स्टडी कंप्लीट कर रहे हो सपोज आपने बैचलर्स भी कर लिए 4 years की दैट्स फाइन. आपका कंप्लीट प्रोग्राम हो जाना चाहिए. एंड IELTS की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज जस्ट 4.5 ओवरऑल. सो इसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको 6 बैंड चाहिए या 7 रिक्वायर्ड है बिकॉज कई प्रोविंस में कनाडा में 7 इज रिक्वायर्ड.
So in Atlantic Canada, overall 4.5 is only required, which is not a big score, and any student can score overall 4.5. लेकिन इसमें जो each की requirement है, जैसे listening में आपको 4.5 चाहिए, even reading में 3.5, that's fine. And talking about writing and speaking, उसमें आपको 4 band की requirement है. सो IELTS की रिक्वायरमेंट जस्ट इतनी रिक्वायर्ड है, और आपको जो फुल टाइम जॉब आपके इन हैंड होनी चाहिए इन अटलांटिक कनाडा, देन यू कैन इजीली गेट दी PR. आपका इजीली सेटल हो जाएगा. यहाँ पर सेटलमेंट बहुत इजी है. मेनी स्टूडेंट्स दे आर नॉट अवेयर कि यहाँ पर सेटलमेंट इजी है. दे जनरली नो कि कनाडा में अगर जाना है तो 2 इयर्स की स्टडी करनी है, 2 इयर्स का वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है, वर्क परमिट कंप्लीट होने के बाद आपको PR मिलेगा. But talking about Atlantic Canada, people are not aware, students are not aware. Yes, there is a good settlement option, easy option है. अगर आप जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2 इयर्स की एटलीस्ट आपने स्टडी कर ली है, IELTS में 4.5 का स्कोर आ गया है, और आपने फुल टाइम जॉब ले ली है. एंड फुल टाइम जॉब इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गेट इन अटलांटिक कैनेडा. एज आई सेड कि एक बिजनेस हब है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो आपको फुल टाइम जॉब भी इजीली अवेलेबल होगी. एंड इवन राइट डायरेक्शंस भी आपको इन चीज़ों में असिस्ट करता है, बिकॉज वी हैव मेनी स्टूडेंट्स जो हमने इस यूनिवर्सिटी में भेजे हैं, तो वी विल डेफिनेटली असिस्ट यू. सी अभी दिस इज द राइट टाइम कि एज यू नो कि सितंबर इनटेक तो क्लोज हो चुका है कनाडा में. सो जनवरी इनटेक ओपन हो गया, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जनवरी इनटेक में फ्लाइट्स ओपन हो जाएंगी. वी रियली होप सो, बट वी कैन कमिट कि होंगी, बट वी रियली लुक फॉरवर्ड कि होने वाली हैं, एंड विल गेट टू नो सून. सो अगर आप जनवरी इनटेक में अप्लाई कर रहे हैं, सो इट्स अ गुड ऑप्शन, एंड यू कैन अप्लाई एट राइट टाइम, एट राइट प्लेस, एट राइट डायरेक्शंस. सो आप अपने स्टडी वीजा के लिए जैसे आपने अप्लाई करना है अपनी एप्लीकेशंस के लिए, आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी ऑफ अटलांटिक कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं विद राइट डायरेक्शंस. एंड जनवरी इनटेक में दे वुड बी ह्यूज रश ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत से बच्चे सितंबर इनटेक में नहीं गए हैं, और कईयों ने जो मई इनटेक था एंड कईयों ने एप्लीकेशंस को अपना डेफो कर लिया था. तो जनवरी इनटेक में दे वुड बी लिमिटेड स्टूडेंट्स, बट वेरी हाई नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वुड बी कमिंग. सो दिस इज द राइट टाइम. आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस को अभी प्रोसेस कर सकते हो माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि आपके प्रिडिक्टेड स्कोर के बेसिस पे भी यू वुड बी गेटिंग ऑफर लेटर थ्रू राइट डायरेक्शंस. सी अभी वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन क्लासेस आल्सो. आप घर बैठ के अपनी IELTS, PT, सेल्फ-एप, इवन CD IELTS एंड डुओलिंगो की क्लासेस भी हमारे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ले सकते हो. सो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे भी कॉल कर सकते हो. हमारा जो कस्टमर केयर नंबर है दैट इज 9254833333, एंड यू कैन कॉल एट आवर alternate number as well, that is 7056563636. And you can email us also at info@rightdirections.co.in. आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो to know about the details. That is www.rightdirectionsoverseas.com. We are very actively participating on Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, Quora, and Pinterest as well. And even I'm giving IELTS related YouTube videos also. You can search me by Poonam Mehta on YouTube videos. You will be able to get information related to IELTS. So see you soon in my next video. I would be giving you update related to the colleges and universities of Atlantic Canada, as यहाँ पर settlement option आपका future के लिए बहुत easy होगा. So I would be updating on few colleges and universities in my next live. So see you soon in my next live. Till then, stay tuned, be positive, and be safe and healthy. Thank you so much.